Little mouse, cause I'm an albatross. Hello students, welcome to my next video. Today we will be doing question number 7 of page number 145. Now in today's sum, the new thing what we are going to learn is the capital of new partner. Usually capital what is being contributed by the new partner is given to you, but in this problem the capital what is being brought by the new partner is not given. That we have to find out. So it's totally a different sum as compared to the previous problems whatever we have done. So first we will just mark the adjustment, students. What are the adjustment? We'll just mark. Now I think we have bank account. We will be opening a bank account. And the first adjustment, if you see, Alia shall bring 20,000 for her share of goodwill and necessary amount for her share of capital in cash. So we have to calculate what would be her capital, what is her contribution. Anju, an old customer whose account was written off as bad, has been paid rupees 400 in cash in full settlement of his dues. So Anju, an old customer whose account was written off as bad, has paid rupees 400 in cash in full settlement of his due. Okay, so we will have a tick mark on debtors. We will just tick mark debtors. The market value of land and building be taken as 40,000. So land and building, tick mark land and building. Then the worksman compensation reserve is to be increased by rupees 10,000. So worksman compensation reserve, it is a liability. Worksman compensation reserve, it's a liability. Unaccounted accrued incomes, unaccounted accrued यानी कि जो unrecorded बोला जाता है. Unaccounted means जो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था पहले, अब उसको रिकॉर्ड करना है. So unaccounted accrued income यानी कि outstanding income, please record it students. Unaccounted accrued incomes, unaccounted accrued incomes का मतलब होता है the income which is outstanding, which is rupees 200 to be accounted for. So it is an asset. अपना अगर income अगर outstanding है, अगर अपना income outstanding है तो वो हमारे लिए assets है. Sixth adjustment, the capitals of all partners are to be in new profit sharing ratio, taking all partners total capital as base after adjustment. Actual cash is to be paid off or brought in by partners for adjusting the capital accounts. So it means we have to find out the proportionate capital. Okay, now we students start posting. We will just start posting. Okay, now we'll start posting. The first one, I think bank. So we are preparing revaluation account, partners capital account, cash account, but we have a bank account, so we write here bank account, and then goodwill account. Then we prepare a balance sheet. We prepare a new balance sheet. We prepare a new balance sheet as on 1/4/2018. We'll prepare a new balance sheet as on 1/4/2018. So now first one is bank account. So bank account is opening balance of bank account. So to balance brought down 20,000. To balance brought down 20,000. Debtors, we have debtors which is 13,000. So less provision. So आपका debtors RDD नहीं दिया है. So we write here less RDD 1,000, which comes to 12,000.
bills receivable, which is 10,000. Then we have stock, which is 20,000. Then you have land and building, which is 30,000. You write inner column because it is having an adjustment. Goodwill is given to you. Goodwill is 20,000. Now as such, I told you that when the value of goodwill is given to you, then you have to write off the previous goodwill. That means जो आपका गुडविल है, जैसा गुडविल अमाउंट जो है ये आपका ओल्ड गुडविल है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, विच इज़ 42,000. अगर बैलेंस शीट में दिया है तो आपको, और एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो ओल्ड गुडविल को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा. राइट ऑफ का एंट्री क्या आएगा, गुडविल का राइट ऑफ का एंट्री क्या आएगा, राइट ऑफ का एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. यहाँ पे राइट ऑफ हो रहा है. जो हम लोग को कैसे समझा कि राइट ऑफ करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है गुडविल 42,000 और आपको एडजस्टमेंट में दिया है 20,000. तो आप क्या करोगे, 42,000 जो गुडविल अमाउंट है उसका आप राइट ऑफ करोगे 42,000. सो 42,000 को मल्टीप्लाई करो 3, डिवाइड करो 4. सो 4 1 ज़ा 4, 0, 4 5 ज़ा, तो इक्वल टू you will be getting 31,000. You will be getting 31,500, and then 42,000 into 1/4, you will be getting 10,500. तो इसका पोस्टिंग क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में लिखो 2. The partners are Bhavesh, Chandra and Alia. Particulars Bhavesh, Chandra, Alia. To goodwill account 31,500, 10,500. और गुडविल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुडविल अकाउंट बनाया नहीं है, अगर आप नहीं बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो गुडविल के क्रेडिट साइड में बाय भावेश कैपिटल अकाउंट, by Chandra capital account 31,500, 10,500. Okay, so this is about the goodwill, old goodwill. तो old goodwill को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स. Creditor is a liability, so we write in balance sheet liability side. Creditors 20,000. Workman compensation reserve. Workman compensation reserve. Workman compensation reserve. Workman compensation reserve, which is
30,000. Worksman compensation reserve which is 30,000. Write in the inner column. जनरल रिजर्व क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. सो योर 24,000 है इंटू 3/4. 24,000 है इंटू 1/4. तो यू विल बी गेटिंग 18,000 and 6,000. So this general reserve you will be writing in partners capital account credit side like usually what we write. So by general reserve 24,000 तो 18,000 and 6,000. 18,000 and 6,000. Then we have Bhavesh capital and Chandra capital. So write in credit sign by balance brought on 32,000, 28,000, 32,000 and 28,000. Now adjustment number 1. Alia shall bring 20,000 for her share of goodwill. So Alia is going to bring goodwill. So we are goodwill is brought in cash. So when the goodwill is brought in cash, so the journal entry is cash account debited to goodwill account. Goodwill account debited to the old partners capital account. This is the case 1, the type 1 of premium method. Goodwill is brought in cash and written in the business. So the journal entry is cash account debited to goodwill account and goodwill account debited to B's capital and C's capital account. So here now cash account is debited. Cash account is debited. Cash account debit to goodwill account. Goodwill account debited to B's capital and C's capital account. So कैश के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट, कैश के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट 20,000. द गुडविल अमाउंट इज 20,000 एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 20,000. देन goodwill account debited to Bhavesh capital account to Chandra capital account. So these 20,000 you distribute into 3/4. 20,000 into 1/4. 4 5s are 20. It will be 15,000. It will be 5,000. 15,000 and 5,000. So we write in the goodwill account debit side 15,000, 5,000. Second effect, partners capital account credit side by goodwill account 15,000 and 5,000. So this is the case 1 of premium method, that is goodwill brought in cash and written in the business. So the journal entry is bank account debited to goodwill account and goodwill account debited to partners capital account. Now second one, Anju, an old customer whose account was written off as a bad, has paid ₹400 in cash in full settlement of his due. देखो अंजू एक कस्टमर था, राइट, शी इज़ वन कस्टमर. उनके पास से कुछ पैसा आना चाहिए था विच वॉज डाउटफुल, जो पहले नहीं था. ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अब वो पैसा देने वाली है, यानी वो अपने को पैसा देने वाली है. शी इज़ गोइंग टू मेक द पेमेंट. तो अगर हमको पेमेंट दे रहा है तो अच्छा है ना. तो हम लोग क्या, अगर अंजू का नाम कट हो जाएगा
लेकिन डेटर से अंजू का नाम कट हो जाएगा, और अंजू के पास से पैसा जो नहीं आने वाला था वो अभी हमको मिलने वाला है, तो इट इज़ आवर प्रॉफिट। अंजू के पास से, तो यहाँ लिखने का बैड डेब्ट्स रिकवर। हमने ऑडिट अकाउंट बनाया नहीं है, इसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स, यानी कि पहला ये डाउटफुल था, पहले ये बैड डेब्ट था, यानी कि अंजू जो कस्टमर है वो पैसा देने वाली नहीं थी, तो हमने क्या किया, उसको ऑडिटरी में डाल दिया। लेकिन अब वो दे रही है, उसके पास से हमें 400 मिल गया है, तो हमें मिल गया पैसा, यानी कि ये अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम हमारे लिए प्रॉफिट है। इट इज़ अ इनकम, इट इज़ अ गेन फॉर आवर बिजनेस। सो रिवैल्यूएशन रिकन बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 400. Then the third one, the market value of land and building be taken as 40,000. मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 30,000 है, हमको उसका मार्केट लेना है 40,000, यानी उसका नया वैल्यू आज के तारीख में कितना हो गया, 40,000। पहले कितना था उसका वैल्यू, 30,000, अभी कितना हुआ, 40,000। इसका मतलब अपना लैंड का वैल्यू बढ़ गया है। सो वी राइट हियर, बढ़ गया है एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। एप्रिसिएशन 10,000 का एप्रिसिएशन है, तो 30,000 प्लस 10,000 विल गिव यू 40,000। सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। उसके बाद फोर्थ वन है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000। तो ये कॉम्पनसेशन रिजर्व बढ़ गया है, लाइबिलिटी बढ़ गया है ना, रिजर्व बढ़ गया है, लाइबिलिटी बढ़ गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज बाय 10,000, 30 प्लस 10 इज 40,000। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ता है, इफ लाइबिलिटी इंक्रीजेस, इफ liability increases, it is our loss. So we write here 2 worksman compensation reserve, which is 10,000 rupees. Worksman compensation reserve rupees 10,000. Then unaccounted accrued income of rupees 200 to be accounted for. अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, अनअकाउंटेड एक्रूड मतलब क्या, जो रिकॉर्ड नहीं किया है, एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब ये आउटस्टैंडिंग इनकम है जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा एसेट्स होगा, पैसे आने वाला है, तो वी राइट हियर एक्रूड इनकम, क्योंकि ये इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्रूड इनकम विच इज़ 200। हमारा एसेट्स बढ़ा, जब लायबिलिटी बढ़ा तो अपनी लॉस हुआ है, तो हमने उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है। अब तुम्हारा एसेट्स बढ़ गया है, तो एसेट्स बढ़ने पर वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया है, इनकम हो गया है। सो वी राइट हियर बाय एक्रूड इनकम विच इज 200, एक्रूड इनकम रुपीज 200। देन सिक्स्थ वन, द सिक्स्थ वन जो है, द लास्ट एडजस्टमेंट जो है, आपको उसके लिए सबसे पहला काम है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ऑन क्लोजिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो विच साइड इज हेवियर, यू कैन सी हियर इट इज 10,000, हियर इट इज 2। ये सिंपल, ये बड़ा है, इसका टोटल आ रहा है 10,000, इसका टोटल आ रहा है 10,600, तो ये बड़ा है। सो 10,600 आप दोनों बाजू लिखो। अब इसमें से इसको माइनस करो तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 600 रुपीज। सो दिस इज 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भावेश चंद्रा। तो 600 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो you will be getting 450 and 150. Okay,
So this 450 and 150 you will write in the partner's capital account, credit sign by revaluation account, profit 450 and 150. Okay, so now you have to find out the proportionate capital. अब ये थोड़ा अलग है, जैसा हमने इसके पहले जब हमने कैलकुलेट किया था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसके जैसा नहीं, थोड़ा अलग है, इट इज़ थोड़ा डिफरेंट है. तो ज़रा हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अब कैलकुलेशन करने से पहले हमें यह देखना है कि व्हाट इज़ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड. जैसा अगर हम इसको प्लस करते हैं, जैसा 32 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 450, अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो इट कम्स टू so this is 32 plus 18 is 345 50,000. so I'm writing 50,000 क्रेडिट का. ठीक है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ये भावेश का है और ये चंद्रा का है. 50,000 प्लस 15,450 इट कम्स टू 65,450. चंद्रा का है 28,000 प्लस सो 34,000 39,150 39,150. अब इसमें से माइनस करो डेबिट साइड का, इसमें से माइनस करो डेबिट साइड का. तो डेबिट साइड में यहाँ 31,500 है और 10,500 है. 31,500 और 10,500 इसको माइनस करता हूँ. सो इट कम्स टू 33,950. इट कम्स टू 28,650. अगर आप टेक्स्ट वन सोल्यूशन देखोगे तो आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड भावेश कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट विच इज 33,950. देन चंद्रा's capital after adjustment is 28,650. Okay, so this is the total share. This is the total share of Bhavesh and Chandra, which is equal to 33,950 plus 28,650. You add up it, you will be getting 62,600. ठीक है. अब आपको रेशियो एज इट इज हमको मालूम है कि जूना रेशियो 3:1 है, बराबर. यानी अपना प्रॉफिट पूरा 4 हिस्से में करना पड़ेगा, जिसमें 4 हिस्से में 3 हिस्सा जाएगा भावेश को और 1 हिस्सा जाएगा चंद्रा को. तो अब ये 62,400 इट इज फॉर 4 शेयर्स. इट इज फॉर 4 शेयर्स. ओके, वो टोटल 4 शेयर है ना. तो शेयर कैपिटल फॉर 1 शेयर. देखो 4 शेयर के लिए 62,600 ला रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द कैपिटल फॉर 1 शेयर. सो कैपिटल फॉर 1 शेयर इट विल बी 62,600 डिवाइडेड बाय 4. So 62,600 divided by 4, if you do 4 1s are 4, 2 22, 4 5s are 20, 26, 4 6 are 24, 20 4 5s are, तो you will be getting 15,650. यानी आपको ये समझ में आ गया कैपिटल 1 शेयर. देखो हम लोग ने निकाला कैपिटल बिफोर एडजस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट इतना आ रहा है, चंद्रा का इतना आ रहा है.
ये दोनों को प्लस के कितना आया, 62,600 आ गया। तो ये 62,600 कितने शेयर के लिए है, 4 शेयर के लिए, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 शेयर के लिए अगर 62,600 ला रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द शेयर फॉर कैपिटल फॉर 1 शेयर, तो फॉर 1 शेयर इट विल कम 15,650। नाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो उसके लिए हमको लगेगा बैलेंस ऑफ 1 लगेगा, है ना, बैलेंस ऑफ 1। क्या न्यू रेशियो दिया है, कैपिटल रेशियो नहीं दिया है ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज 1/5। तो बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 - 1/5, तो 5 - 1/5 you will be getting 4/5. Balance of 1 equal to 1 - 1/5 equal to 5 - 1/5, you will be getting 4/5. So then new profit sharing ratio भावेश क्या आएगा, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। सो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4, बैलेंस ऑफ 1 4/5, ये कट यू विल बी गेटिंग 3/5। सिमिलर वे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ चंद्रा, ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 4/5, ये कट हो गया तो कितना बचा, 1/5। यानी कि अभी शेयर ऑफ आलिया, तो आलिया का शेयर क्या है, 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 ही है, तो यानी तो 1/5 ही आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 3:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 3:1:1। ये हुआ उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये उसका हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 हुआ। ठीक है, तो यानी कि टोटल शेयर कितना हो गया अभी, 5। टोटल शेयर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको इतना मालूम है कि कैपिटल फॉर 1 शेयर हमको इतना मालूम है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ भावेश। भावेश का 3 शेयर है, 3 इंटू what is the share of capital of 1 share, it is 15,650। 15,650, तो इसको इंटू करो 0, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19, 3 × 5 = 15, 16, 3 × 1 = 3, 4, you will be getting 46,950। Similar way proportionate capital of Chandra, चंद्रा का 1 शेयर है, तो 1 × 15,650, you will be getting 15,650। Similar way proportionate capital of आलिया, आलिया कितना पैसा लाएगी, 15,650, 15,650। दिस इज द कैपिटल व्हाट इज ब्रॉट बाय आलिया। तो आलिया पैसा ला रही है, आलिया इज ब्रिंगिंग द कैश, by Alia is bringing the cash. So what is the journal entry, cash account debited to Alia capital account, which is 15,650। see you can treat like cash and bank, अगर कैश बोला है तो कैश अकाउंट ही बनाओ, जैसा भी इफ यू हैव सीन द एडजस्टमेंट नंबर 1 में ये बोला है कि नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश बोला है, तो कैश अकाउंट होना चाहिए, वैसा है। ठीक है, अगर आप एक साथ बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलवेज बी केयरफुल इन द बोर्ड एग्जाम। अगर कैश अकाउंट बोला है यू हैव टू मेक कैश अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट बोला है तो यू हैव टू मेक बैंक अकाउंट। अगर कैश में आया है तो कैश में पोस्ट करो, अगर बैंक में आया तो बैंक में पोस्ट करना पड़ेगा। बट हियर आई हैव टेकन इज कंबाइंड, मैंने बैंक में सब ले लिया है मैंने। ठीक है, तो या तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पर अपना ये आपका बैंक का बैलेंस है, तो आपका बैंक बैलेंस कितना है
20,000 बराबर। तो मैं ये बैंक बैलेंस 20,000 है, टू बैलेंस ब्रॉड, ये बैंक बैलेंस है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं कैश ही बनाता सपोज, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ आ गया, एक गुडविल आ गया 20,000 और एक आलिया कैपिटल। तो ये जो बैलेंस ब्रॉड ऑन है ये किसका बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस है। तो बैंक के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आई एम राइटिंग बैंक हियर एज इट इज 20,000, ठीक है। दिस वे यू कैन डू। नाउ हियर कैश अकाउंट, दिस इज आवर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू आलियास कैपिटल अकाउंट। सो बाय क्रेडिट साइड कैश अकाउंट 15,650, 15,650, यू गॉट इट। हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, हमने कैश अकाउंट बनाया। इसका एक रीज़न एक और भी यहाँ पर है, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट आपको कैश अकाउंट में करना है, इसलिए आपको कैश अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो कैश अकाउंट। अब आपका जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, जो आपका जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, जैसा ये 46,950, तो ये आपका टू बैलेंस कैरीड ऑन है कैपिटल अकाउंट का, टू बैलेंस कैरीड ऑन 46,950, 15,650, 46,950, 15,650, और this you will be writing in the liability also, capital भावेश चंद्रा 46,950, 15,650, आलिया 15,650, तीनों को ऐड करो, $78,250. So now we close the partners capital account. So the total comes to, if you see, डेबिट साइड का टोटल है, ये कितना है, 0, 5, 19, 14, 1, 6, 7, 8, 78,450 है। तो और इसका टोटल अगर आप देखने जाओगे, मेरे ख्याल से ये हमने पहले से टोटल किया हुआ था, तो टोटल इज 65,450। तो इट्स वेरी क्लियर, डेबिट साइड इज हेवियर। तो डेबिट साइड का अमाउंट 78,450, 78,450 दोनों बाजू लिखो। अब उसमें से ये दोनों माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 13,000. This difference will go to cash account. This is a balancing figure. So ये डेबिट में है, तो अब ये क्रेडिट में है, तो इट विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट टू भावेश कैपिटल अकाउंट 13,000. Okay, now Chandra, total Chandra you will be getting. So अभी आप डेबिट से टोटल करोगे तो इट कम्स टू 26,150, 26,150, और आप चंद्रा का क्रेडिट सेट का टोटल है 28,650. तो इससे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 28,650, 28,650. अब इसमें से माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 2,000. कितना आ रहा है, सॉरी 28 नहीं, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 39,150.
39,150। तो उसे माइनस करोगे, 39,150 से माइनस करोगे डेबिट का अमाउंट, तो यू विल बी गेटिंग 13,000. This will go to cash account. It's not, don't get confused, it is just a closing, how you have been taught before, same way. Okay, do not get confused how I am closing the account. It is same pattern whatever has been taught before, how to close an account. Then alias balance, it is 15,000, so it will come here 15,650, 15,650, 15,650. This is the capital balance. ओके, सो नाउ दिस कैश यहाँ पे डेबिट में आया है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा बाय चंद्रा कैपिटल अकाउंट 13,000. नाउ वी क्लोज द कैश अकाउंट, वी क्लोज द कैश अकाउंट. So it will be two, three, 4, 48,650, 48,650 minus 13,000, so it is 35,650. This will be by balance carried on 35,650, 35. Okay students, I think one entry we missed out with respect to the RDD. So one customer called Anju has paid 400 rupees in cash for bad debts. So the entry will be cash account debited to revaluation account, cash account debited to bad debts recovery account. So cash account will be debited to bad debts 400 rupees, and then we total this, you will be getting 49,050. Write this 49,050 on both the side. 49,050 minus 13,000, you will be getting 36,050. So this is the closing balance of cash account. So closing balance of cash account 36,050. Then your goodwill account will get tallied. Again in goodwill account, I think goodwill balance was given to you in the balance sheet, old goodwill. So we write here in the goodwill account, we write here two balance brought on, which is 42,000, and this goodwill is written off by the old partners, and this is the goodwill amount which is received this year, that is which is given in the adjustment. So it will get 20 plus 42 will be 62,000. 20 plus 42 will be 62,000 rupees. So goodwill account get tallied, and now if you see our capital account by default, sorry, our balance sheet by default will get tallied, and the tallying amount is 1,38,250. 1,38,250. Still looking at me.